Hello, dear friends, dear well wishers. Welcome back to English with Ishfaq Shafi. Today's topic is about articles. You all must have learned a little bit about articles. But this video is going to be very beneficial, very useful for you, because in this video I would like to share some tricks with my friends which will help you in your finals, in your exams, whether you are a student or preparing for any exam. So watch the video till the end. If you don't have time right now, watch the video later, but watch it till the end. And don't forget to share it with your friends. So let's move to the topic. What are articles in English grammar? An article in English grammar is a word that defines a noun as a specific or unspecific. आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा वर्ड है होता है जो डिफाइन करता है कि ये नाउन जो है इज इट स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, इज इट पर्टिकुलर और कॉमन. देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए एन एंड द are called articles, and these three articles a, an and the are divided into two categories. One is known as indefinite article and the other one is known as definite article. A and an are called indefinite article because they do not refer to any particular or definite person, place or object. For example, a boy, a pen, an umbrella. That is called the definite article because it always points out some particular object. For example, the umbrella he had is stolen. This is the boy who had stolen my book. So here we learn that articles are always used with nouns. So first of all, we must know what are nouns. In common words or in simple words, we can say nouns are naming words. Or we can say anything that exists in this universe that we can touch, that we can feel, that we can see are said to be nouns. As far as counting is concerned, nouns are of two types. One is known as countable nouns, and the other one is known as uncountable nouns. What are countable nouns? Countable nouns are the nouns which can be counted, and uncountable nouns are the nouns which cannot be counted. Countable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और uncountable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते. ठीक है, तो countable nouns ये जो होते हैं इनके सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं. क्या होते हैं? सिंगुलर प्लूरल्स. फॉर एग्जाम्पल, पेन, व्हाट इज इट प्लूरल फॉर्म? पेन्स. इसी तरह चेयर, व्हाट इज इट प्लूरल फॉर्म? चेयर्स. ठीक है. सिमिलरली बैग, what is its plural form? Bags. House, what is its plural form? Houses. Umbrella, what is its plural form? Umbrellas. University, what is its plural form? Universities. ठीक है. तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? पेन, पेनस. इसमें क्या होती है? एक जो है इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. चेयर, विच मटेरियल वी डू यूज टू मेक ए चेयर? चेयर्स आर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक और आयरन. इसी तरह सीमेंट भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है. वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, एटसेट्रा. ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन्स है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स. तो हमने क्या सीखा? आर्टिकल्स कितने हैं? 3, ए, एन एंड द. ए और एन जो है इनकी मीनिंग क्या है? 1, एक. तो इसका मतलब है यहां पर हमें समझ आता है कि ए और एन का अगर मीनिंग क्या निकलता है? 1. तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है. ए और एन किन के साथ इस्तेमाल होता होगा? फिर काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए. ठीक है, दैट मीन्स कि प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है,
तो जब हम छोटे थे तो बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था, दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट and these 26 letters are divided into two categories. One is known as consonant letters and the other one is known as vowel letters. Consonant letters are 21 and vowel letters are 5. And A, E, I, O, U. These are 5 letters. These are 5 vowel letters. तो हमें बचपन में ये सिखाया जाता था, if a word begins with vowel letter, we use article N with that word, and we use article A with the word which begins with consonant letter. अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई वर्ड वावेल लेटर से स्टार्ट होता है उस वर्ड के साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं. ठीक है, सिंपल फंडा. तो ये देख लो, पेन. व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ पेन? पी. इज पी अ कॉन्सोनेंट लेटर और वावेल लेटर? कॉन्सोनेंट लेटर. व्हाट डू वी यूज विद वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर्स? a pen. Chair, C, is also a consonant letter. A chair. Bag, a bag. House, a house. Umbrella. What is the first letter of umbrella? U. Is U a consonant letter or vowel letter? Vowel letter. What do we use with the word begins with vowel letters? An umbrella. University. What is the first letter of university? U. Is U a consonant letter or vowel letter? Vowel letter. What do we use with the word begins with vowel letters? An. So an university. But ये गलत है. क्यों? क्योंकि umbrella जो है it begins with U but giving the vowel sound a. umbrella a जो है ये एक vowel sound है. ठीक है, और university also begins with the vowel letter U but giving the consonant sound y. क्या देता है आपको पहला साउंड? य. यूनिवर्सिटी. तो य जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया? ए यूनिवर्सिटी. तो सबसे बड़ा फंडा क्या है? साउंड्स का. एंड देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दीज 44 साउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. वन इज नोन एज कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड द अदर वन इज नोन एज वावेल साउंड्स. देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 vowel sounds. And these vowel sounds are further divided into two categories. One is known as monophthongus and the other one is known as diphthongus. वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे कहां पर कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है. ठीक है, अब ये देख लो, अभी तक हमने क्या सीखा कि आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो है वो काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, अगर स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट लेटर से तो आर्टिकल ए आएगा, और अगर स्टार्ट होता होगा वावेल लेटर से तो आर्टिकल एन लगेगा. तो द जो है ये किन के साथ इस्तेमाल होता है? आर्टिकल द जो है वो काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल्स के लिए भी, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब एक चीज याद रखो, अगर अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे और काउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स दिए होंगे और अगर हमें उनके साथ आर्टिकल लगाना होगा तो उस स्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द लगाएंगे. ठीक है, और आर्टिकल द जो है वो इनके साथ भी इस्तेमाल होता है. और जब हम आर्टिकल द काउंटेबल नाउन के सिंगुलर फॉर्म्स के साथ लगाते हैं तो वो पर्टिकुलर बन जाते हैं, वो खास बन जाते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है, तो ये उसको कोई पर्टिकुलर नहीं बनाता है. लेकिन जब मैं कहता हूं दिस इज द बॉय हु हैड स्टोलन माय बुक, तो ये उस वक्त पर्टिकुलर बन जाता है, ये वो लड़का है जिसने मेरी बुक चुराई थी. ठीक है, लेट अस सी द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स. व्हाई टू यूज आर्टिकल ए, व्हाई टू यूज आर्टिकल एन एंड व्हाई टू यूज आर्टिकल द. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द यूसेज ऑफ आर्टिकल ए. So for that, first I have to erase the board. Article A is used. Rule number 1. Before a common noun, in singular number, beginning with कॉन्सोनेंट साउंड. आर्टिकल ए उस
वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है जो कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो और स्टार्ट होता होगा किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए बुक, ए टेबल, ए पेन, ए बैग, ए बॉक्स, एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे कॉमन नाउन्स है, सिंगुलर भी है और स्टार्ट होते हैं किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से। रूल नंबर 2, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड, बिगिनिंग विथ यू or EU, giving the consonant sound U. आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ भी इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है यू या EU लेटर से, लेकिन साउंड देता है यू की, यानी कि उनकी पहली साउंड जो निकलती है वो कॉन्सोनेंट साउंड य से निकलती है। ठीक है, हालांकि वो स्टार्ट होते हैं यू या ईयू, मतलब कि ये दोनों क्या है, वावेल लेटर्स। यू भी एक वावेल लेटर है, ईयू भी एक वावेल लेटर है, यानी कि आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है जो वावेल लेटर यू या ईयू से स्टार्ट होते हैं लेकिन साउंड देते हैं यू की, य की पहले, तो उनके साथ भी आर्टिकल ए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की पहली साउंड क्या निकलती है, य, तो य क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हमने इसके साथ ए लगाया। नंबर 2, ए यूनिक, लाइक ए यूटेंसिल, ए यूजफुल, ए, यहां पे लिखेंगे ए यूरोपियन। ठीक है, अक्सर यहां पर गलत हो जाता था, इन चीजों में बच्चे मतलब कि अक्सर कंफ्यूज होते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ा होता था कि ये वावेल लेटर्स का, कॉन्सोनेंट लेटर्स का, तो इसीलिए वो कंफ्यूज होते थे। लेकिन असल में फंडा है क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड वावेल साउंड का। ये भले ही स्टार्ट होते हैं वावेल लेटर से, लेकिन पहले ये साउंड देते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की, यो की, इसीलिए इनके साथ ए लगता है। यूरोपियन, यहां पर भी हम नहीं पढ़ते यूरोपियन, यूरोपियन गलत है, हम पढ़ते हैं यूरोपियन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज यूरोपियन, तो ये निकलती है, इसीलिए ए यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, ये निकलती है पहली साउंड, ए यूनिवर्सिटी। यूनिक, ए यूनिक। यूटेंसिल, ए यूटेंसिल, ए यूजफुल। ठीक है, थर्ड रूल, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड, beginning with O, giving the consonant sound va। आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ भी इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है किस लेटर से, ओ लेटर से, लेकिन साउंड निकलती है व की। फॉर एग्जाम्पल, ए 1 रुपी नोट, तो यहां पर ONE स्टार्ट किससे हुआ, ओ से, कौन सी साउंड निकलती है, व, ए 1 रुपी नोट, तो इसीलिए व जो है वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइड बाब। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता होगा ओ से लेकिन साउंड निकलती होगी वा की, तो उस सूरत में भी हम क्या, आर्टिकल ए उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, फोर्थ रूल क्या है, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड beginning with H,
when H is not silent. आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ भी इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है एच से, लेकिन एच साइलेंट नहीं होता है उस वक्त, वो पढ़ा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए हॉस्पिटल, ए हाउस, ए हॉर्स, ए हीरो, एक्स्ट्रा. ठीक है. अब एक्सेप्शन ये है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड व्हेन इट इज यूज्ड इन जनरल. कोई भी आर्टिकल उस वर्ड के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जो एज जनरल इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल. तो यहां पर कोई भी आर्टिकल हम मैन के साथ नहीं लगा सकते हैं, न ए, न एन, न द. क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो मैन है, इट इज यूज्ड इन जनरल. मैन इज मॉर्टल, हर एक इंसान को मरना. यहां पर हम किसी पर्टिकुलर मैन या किसी एक मैन के बारे में नहीं बात करते, यहां पर हम जनरल सबके बारे में बात कर रहे होते हैं. तो इस ऐसी सूरत में हम कोई भी आर्टिकल किसी ऐसे वर्ड के साथ इस्तेमाल नहीं करते जो इस्तेमाल हुआ होगा एज जनरल. ठीक है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ आर्टिकल ए. नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ आर्टिकल एन. Article N is used, rule number 1, before a word beginning with a vowel sound. Article N is used बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद वॉवल साउंड. आर्टिकल एन उस वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है किससे? वॉवल साउंड से. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एक्स्ट्रा. नंबर 2, आर्टिकल एन इज यूज्ड before a word beginning with H when H is silent. आर्टिकल एन उस वर्ड के साथ भी इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है एच लेटर से. ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर एच से, लेकिन एच वहां पर क्या होता है? साइलेंट. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट, यहां पर क्या है? एच साइलेंट है. इसी तरह एन आवर, यहां पर भी एच साइलेंट है. एन ऑनरेबल, यहां पर भी एच क्या है? साइलेंट है. तो जो कोई वर्ड स्टार्ट होता है एच से लेकिन एच साइलेंट हो, वहां पर एन लगाते हैं. अगर एच साइलेंट ना हो तो ए लगाते हैं. ठीक है. रूल नंबर 3, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर ए लेटर, नॉट वर्ड, बिफोर ए लेटर, यूज्ड एज ए शॉर्ट फॉर्म, short form of a word beginning with consonant having vowel sound. यानी कि आर्टिकल एन उस लेटर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जो एज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन स्टार्ट होता होगा क्या? किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन वॉवल साउंड होती होगी पहले. मिसाल के तौर पर, एन MLA, एन MBBS,
NMA, MSc एक्स्ट्रा। लेकिन अगर हमें इनकी फुल फॉर्म लिखनी होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MA मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो अगर हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए, फॉर एग्जाम्पल ए मास्टर्स इन आर्ट्स, ठीक है, तो हम ए लगाएंगे क्योंकि ये फुल फॉर्म है। तो ये रूल क्या है? रूल ये है कि आर्टिकल एन हम उस लेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं जो एज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट हैविंग वॉवल साउंड, लेकिन वॉवल साउंड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर MLA, एम जो है ना इससे पहले निकलती है ए म, तब बन जाए एम, ए म एम, तो ए जो है वो एक वॉवल साउंड है, इसीलिए मैंने लिखा क्या है एन MLA। रूल नंबर 4, वर्ड टर्न सुना है, यानी कि आफ्टर टर्न, ये जो वर्ड टर्न होता है, आफ्टर टर्न द नाउन इज नॉट प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल। After turn the noun is not preceded by an article, यानी कि टर्न, अगर जब भी वर्ड टर्न आएगा उसके बाद जो नाउन होता होगा उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ही टर्न क्वाड, ही टर्न क्वाड, तो यहां पर क्वाड के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना ए ना एन ना द, ठीक है, क्योंकि टर्न वर्ड जो है इसके बाद नाउन के साथ हम कोई, टर्न के बाद नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ आर्टिकल एन। नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ आर्टिकल द, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Article the is used before a word denoting a particular person or thing, or which is well known or already mentioned or immediately to be introduced। मतलब आर्टिकल द हम उस वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिनोट करता है, या विच इज वेल नोन, जो कोई फेमस पर्सन या कोई फेमस ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, या आर्टिकल द हम उसके साथ भी इस्तेमाल करते हैं जिसका जिक्र पहले हुआ होगा, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन्ड, या आर्टिकल द हम उस नाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जिसका जिक्र आगे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेन दैट यू गेव मी, दैट यू गेव मी, ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया था। दिस इज द पेन दैट यू गेव मी, ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया था। गो कि ये पर्टिकुलर बन जाता है, बाकी पेन से ये पर्टिकुलर बन जाता है क्योंकि ये आपने मुझे दिया था, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह देयर वाज ए फार्मर, देयर वाज ए फार्मर, full stop, the farmer had 4 sons, ठीक है। यहां पर फार्मर के साथ मैंने क्या आर्टिकल ए लगाया, यहां पर आर्टिकल द लगाया, क्यों? देयर वाज ए फार्मर इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक फार्मर था। द फार्मर हैड 4 सन्स, फार्मर के कितने बेटे थे? 4। तो यहां पर ये फार्मर के साथ मैंने आर्टिकल द इसलिए लगाया क्योंकि इसका जिक्र पहले हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। या इसी तरह हम लिखते हैं द काउ इज ए पेट एनिमल, द काउ इज ए पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। तो यहां पर मैंने काउ के साथ आर्टिकल द लगाया क्योंकि इसका मतलब है कि मैं इसको आगे जाके इंट्रोड्यूस करूंगा कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज है। तो आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल द हम उस वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं
जो कोई पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को डिनोट करता होगा, या जो कोई फेमस होगा या वेल नोन होगा, प्लस जो जिसका जिक्र पहले हुआ होगा उसके साथ भी हम आर्टिकल द लगाएंगे आगे, या जिसको हम आगे जिक्र करेंगे उसके साथ भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो आप रूल नंबर 2 देखते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू डिनोट ए क्लास और काइंड। आर्टिकल द उस कॉमन नाउन से पहले भी हम लगाते हैं जो सिंगुलर हो लेकिन वो किसी क्लास या किसी ग्रुप को डिनोट करता होगा। मिसाल के तौर पर द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहां पर हम किसी एक कैमल या किसी एक डेजर्ट की बात नहीं करते, बल्कि हमारा कहना होता है कि ये जो कैमल्स होते हैं वो शिप ऑफ द डेजर्ट माने जाते हैं, ठीक है, या डेजर्ट के जो शिप होते हैं वो कैमल्स होते हैं, ठीक है। तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये पूरे क्लास को, पूरे कैमल्स को डिनोट करता है, ठीक है। इसी तरह द रोज इज द क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स। The rose is the queen of all flowers. Yeah, the lion is the king of jungle. Yeah, the pen is mightier than the sword. ठीक है, तो जब हम किसी कॉमन नाउन को एज ए क्लास या एज ए काइंड डिनोट करते हैं तो उसके साथ भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट्स सी द रूल नंबर 3। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल द इनके साथ भी इस्तेमाल होता है। सीज, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स, बेज, न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स एक्स्ट्रा। सीज फॉर एग्जांपल द रेड सी, तो इसके साथ भी क्या द लगा सकते हैं। रिवर्स द गैंग्स, lakes, the Dal Lake, deserts, the Sahara, bays, the Bay of Bengal, the Bay of Bengal, newspapers, the Hindustan Times, the Hindustan Times, holy books, the Quran, the Bible, the Gita, ठीक है। ये जो लैंग्वेजेस, कंट्रीज, सिटीज और स्टेट्स होते हैं इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम नहीं कहेंगे द इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, या मुंबई या दिल्ली, इनके साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड विद देम। लैंग्वेजेस मिसाल के तौर पर इंग्लिश है, हम नहीं कहेंगे द इंग्लिश, अगर कहेंगे तो वो क्या है, गलत है। द मुंबई गलत है, द दिल्ली गलत है, ठीक है। अलबत्ता यूएई या यूएसए इनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यूएई, यूएसए, ठीक है। तो इनके साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। आई एम प्रीटी श्योर यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक and comment, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. Love you all.